जय हिंद बच्चों। आज हम डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट जनरली आस्क इन CBSE board exam. Okay. So first you understand about how we can derive graphically both the curve C curve and S curve. C curve means consumption curve and S curve means saving curve. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि जो हम इसके पहले जो कंजम्पशन कर्व है और सेविंग कर्व है इनको हमने किस तरीके से शेड्यूल के थ्रू ड्रा किया था ग्राफिकली। एंड उस समय हम लोगों ने ये समझ गए थे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व। उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि कंजम्पशन कर्व दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग and saving curve that is also upward sloping but it is started from the negative axis of y. Okay. तो सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व बेसिकली दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स if you know the consumption curve then you can easily find saving curve with the help of consumption curve, and if you know the saving curve then you can easily find consumption curve with the help of saving curve. And C curve and S curve, if we added these two that will give the income line or income and expenditure line. Right. So derivation of consumption and saving curve having the two important part. Number one, that is the first हम इसके बारे में बात करेंगे कि how we can derive the consumption curve with the help of saving curve. Number one. Okay. And दूसरा जो part है this is the derivation of consumption curve. Okay. With the help of saving curve. Right. तो ये दो पार्ट हैं जिनको हम एक एक पार्ट करके आगे करेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। ग्राफिकली सपोज करो कि आपको ये डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, इसका मतलब इस पूरे हेडिंग में आपको जो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि यू हैव टू डिराइव सेविंग कर्व। मीन्स आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है ग्राफिकली, बट यू ऑलरेडी नो अबाउट द कंजम्पशन कर्व। कहने का मतलब ये है कि कंजम्पशन कर्व गिवन है और विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व हाउ यू कैन फाइंड द सेविंग कर्व। ओके। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को मीन्स नंबर वन ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। ओके। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, इसका मतलब है कि आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है। ओके। और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। ओके। विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व, इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन कर्व आपको पता है और उसकी हेल्प से सेविंग कर्व आप कैसे डिराइव करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो ग्राफिकली इसको मैं ड्रा करने की प्रोसेस बताता हूँ, और जिस जिस तरीके से हम इसको ग्राफ पेपर में या डायग्राम के फॉर्म में ड्रा करेंगे उन सारे स्टेप्स को नोट डाउन करना है। ओके। तो दिस कॉन्सेप्ट हैविंग द
two part. Number one, the process of deriving the saving curve by using the consumption curve, and explaining the steps involved during the derivation of the saving curve. Okay, so first understand the derivation of this saving curve. Okay, so it means you have already know about the consumption curve, right? Suppose in diagram you already know about consumption curve, or what is the shape of consumption curve you have already know. In this x-axis you denote income level y, and in y-axis you denote the consumption c, right? And the shape of the consumption curve is upward sloping and started from the y-axis. This is your consumption curve, right? But the intercept on the y-axis, what it is known as, that is C bar. C bar means autonomous consumption, right students? अब this is given according to this topic, derivation of saving curve with the help of consumption curve. It means already you know the consumption curve. With the help of consumption curve means you have already know about the consumption curve and how you can find saving curve. This is the main content of this explanation. Okay, तो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, ड्रॉ अ 45 डिग्री लाइन, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइन. ओके, तो ये पहला स्टेप है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, बट आप पहले इसको समझिए. फर्स्ट वी ड्रॉ a 45 degree line. This is 45 degree line, and that is called income and expenditure line. Okay students, पहला काम आपको करना है एक 45 डिग्री की इनकम और एक्सपेंडिचर लाइन को ड्रा करना है, एंड लोकेट अ पॉइंट वेयर दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइन इंटरसेक्ट द कंजम्पशन कर्व. ओके, this is a point where this line intersect to the consumption curve. That point is A. ओके, तो पहला स्टेप आपका इसमें क्या आ गया कि आपने पहले इसमें 45 डिग्री की एक लाइन खींची और उसके एक पॉइंट को लोकेट किया जहां पर ये कंजम्पशन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, देन अब आपको चाहे तो इसी में कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट बना दे रहा हूं इसमें कार्टिजन दिस, जहां पे हमको सेविंग कर्व को लोकेट करना है. ओके, तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. इन दिस वे दिस इज इनकम y एंड दिस इज सेविंग, क्योंकि यहाँ पे आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंजम्पशन कर्व. तो पहले स्टेप में आपने क्या किया कि 45 डिग्री लाइन ड्रॉ किया, और ये 45 डिग्री लाइन जहां कंजम्पशन कर्व को इंटरसेक्ट करती है, लोकेट दैट पॉइंट ए. ओके, देन दूसरे स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए. तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन. ओके, ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. आप सीधे इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से या फिर सीधे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी. ओके, एंड लोकेट अ पॉइंट वेयर दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस. सपोज करो दिस इज अ पॉइंट बी. ओके, तो यू हैव फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कार्टिजन, ऑन दिस पार्ट, जहां पर आपको सेविंग कर्व को दिखाना है. तो आपको एक पॉइंट मिल गया बी. कैसे मिल गया, बाय ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए. इस परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी फ्रॉम द एक्स एक्सिस. राइट स्टूडेंट्स? ओके, देन
measure the OC intercept denoted as autonomous consumption. Here, this part measure करना है, that is OC denoted as autonomous consumption, this length, okay, and measure it on the negative axis of y starting from the origin, that is suppose this is OS, दिस इज माइनस सी बार, ओके। तो आपने अब तीसरा स्टेप में आपने क्या किया कि मेजर द ऑटोनोमस कंजम्पशन ओसी एंड लोकेट इट ऑन द नेगेटिव एक्सेस ऑफ वाई, दैट इज ओ एस, इक्विवेलेंट टू ओ एस। हियर क्या है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड एक पॉइंट आपने लोकेट किया एस, ओके। तो यू हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड पॉइंट एस। देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, मीट द पॉइंट एस एंड बी बाय स्ट्रेट लाइन, ओके। दिस इज अ मीटिंग पॉइंट, ओके। this is your saving curve. This is SS is a saving curve which is started from the point S. आपको कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, और आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया कि आपने एक पॉइंट फाइंड आउट किया B बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट A, और दूसरा पॉइंट आपने फाइंड किया बाय मेजरिंग द डिस्टेंस OC denoted as autonomous consumption and draw it on negative axis of y equivalent to autonomous consumption, that is OS, right? So this is whole process to derive the saving curve with the help of consumption curve graphically, right students? Then write down these 4 steps of drawing the saving curve with the help of consumption curve, okay. This is the important explanation of this derivation, right students? तो आपने पहला स्टेप में क्या किया था, जस्ट राइट हियर स्टेप 1 क्या था। पहला आपने क्या किया था, एक आपको यू हैव ऑलरेडी नो द कंजम्पशन कर्व, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने पहला काम क्या किया, एक 45 डिग्री की लाइन खींचा। तो यहां पर स्टेप 1 में ड्रॉ ए 45 डिग्री लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम origin O, that is income and expenditure line, right? Then step 2 में क्या है, ये लाइन ड्रा करने के बाद एक आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लोकेट ए पॉइंट ए, ये पॉइंट आपने लोकेट किया है, लोकेट ए पॉइंट ए वेयर C curve intersect y is equal to E line, मतलब कि एक पॉइंट आपको लोकेट करना है वेयर बोथ कर्व आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, राइट। देन स्टेप 3 में आपने क्या किया था, फ्रॉम द पॉइंट ए आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, okay, starting from the point A and starting from the point A, this draw a perpendicular line and
locate a point B, this point, locate a point B, locate a point B where this line intersect the x-axis। ये x-axis है आपका और ये परपेंडिकुलर जहां पर x-axis को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज B। ओके, एंड देन फोर्थ स्टेप में आपको क्या किया था आपने? फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया कि मेजर डिस्टेंस OC, ओके, एंड ड्रॉ इट ऑन द नेगेटिव एक्सिस ऑफ y इक्विवेलेंट टू OS। ओके, तो फोर्थ स्टेप में मेजर द लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी कहिए, मेजर द लेंथ OC, व्हाट इज दिस? C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। मेजर द OC, लेंथ OC एंड ड्रा it equal to, draw it on negative axis of y, draw it negative axis of y as OS। ओके, देन आपने OS के इक्विवेलेंट आपने ये OC ड्रॉ किया, OS। ओके, देन द पॉइंट इज बी फाइंड a point S. This is a new point S. Okay, then next आप क्या करेंगे इसमें? See here, इसके बाद आपको जस्ट देखिए, इसके बाद you have the 2 points, point S and point B. Then step 4, see here, step 4 में step 5 में आपको क्या करना है? Meet the point S and B, दो पॉइंट आपको मिले थे ऑलरेडी, S and B। Meet the point S and B straight through meet the point S and B through straight line। we get a saving curve SS। This is whole explanation of this derivation of the saving curve, right students? So you require to know the whole steps of derivation of this saving curve by using the consumption curve, and graphically how you can derive it, right students? So this is a very simple explanation to derive the saving curve। okay, see once again, this is very important concept generally asked in a CBSE exam। so understand the major steps and the process to derive diagrammatically। इसमें आपको क्या करना है? first draw a consumption curve which is already know, then number 1 step, draw a 45-degree line। okay, locate a point A where both consumption and expenditure line intersect to each other, and
from point A, draw a perpendicular line, okay, and locate a point where this perpendicular line intersect the x-axis, that is point B. Measure the distance OC, which is the autonomous consumption intercept, and draw it on the negative axis of y equivalent to OC, that is OS, that find a point S, okay, and meet the point S and B straight way to upward, then you will get saving curve SS. Okay, this is the whole explanation of to derive the saving curve, right students. चलिए अब आपको अगला एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ, सेम वे हाउ यू कैन फाइंड द कंजम्पशन कर्व with the help of saving curve, just इसका रिवर्स. Okay, that is the our second topic is that is derivation of consumption curve, derivation of consumption curve from saving curve. ओके, तो ये जस्ट इसके पहले के जो एक्सप्लेनेशन है उसका रिवर्स है. ओके, अगर वो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. अब आप इसमें सेम वही वे जस्ट मैं दोनों को पैरेलल इसमें करके दिखाते जाऊंगा. ओके, तो इसमें सेम वे, इसका मतलब ये है कि आपको कंजम्पशन कर्व पता करना है और यू हैव सेविंग कर्व. तो जब आपको इतनी चीज़ करनी है तो पहले आप रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग कर्व. सेविंग कर्व, अब या इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा है कि सेविंग कर्व आपके पास किस शेप का होता है. जिस द जनरल शेप ऑफ सेविंग कर्व दैट इज इन दिस वे. एक तो ये सेविंग कर्व जो है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस. एक चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए. इन दिस वे देयर इनकम वाई, हियर सेविंग. ये क्यों हम ड्रा कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द सेविंग कर्व. अब विद द हेल्प ऑफ दिस सेविंग कर्व यू हैव टू फाइंड द कंजम्पशन कर्व, राइट. तो पहले आपको क्या करना है कि एक सेविंग कर्व को ड्रॉ कर लेना है, और वो सेविंग कर्व आपको ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर पता होना चाहिए कि दिस इज अ सेविंग कर्व started from the negative axis of y. ओके, चलिए अब आपको इस सेविंग कर्व के डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ सेविंग कर्व हाउ यू कैन फाइंड द कंजम्पशन कर्व, राइट स्टूडेंट्स. तो हियर दिस सेविंग कर्व एंड intersect the x-axis at point, सपोज करो दिस इज अ पॉइंट P. ओके, और इस पॉइंट को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉइंट जहां पर सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है दैट शोज द जीरो सेविंग. ये पहले का प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर हमारा पर्पज है कि जहां पर सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है लोकेट दैट पॉइंट एज P. ओके, अब आपको एक दूसरा ग्राफ पेपर या डायग्राम ड्रॉ करना है जहां पे आपको कंजम्पशन कर्व को दिखाना है. ओके बच्चों, अब इसको आप बना लीजिए. इस पार्ट में आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सेविंग कर्व कंजम्पशन कर्व को पता करना है, राइट. तो इसका भी पूरा पार्ट ड्रॉ कर लीजिए. दिस इज इनकम एंड दिस इज कंजम्पशन, क्योंकि आपको इधर कंजम्पशन को दिखाना है. इस पार्ट में आपको विद द हेल्प ऑफ दिस ये कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है. तो इसका पहला काम सेम वही है कि इसमें भी आपको एक 45 डिग्री की लाइन को ड्रॉ करना है. ओके, देन पहला जो उसमें था सेम स्टेप कि दिस इज ऑलरेडी गिवन. अब इस गिवन पोर्शन में आपको पहला काम क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, ड्रॉ. सेम पहला स्टेप दोनों में सेम है. ड्रॉ a 45 degree line that is income equal to expenditure line.
तो अब आप इसमें 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके दिस। अब आप ये बताइए कि क्या ये 45 डिग्री की लाइन सेविंग कर्व को कहीं टच करेगी? नहीं करेगी। ओके, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइन, दिस इज 45 डिग्री लाइन, राइट। ओके, अब आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, पहला काम आपने ये लाइन कर दिया। ओके, अब आपको एक मेजर करना है पॉइंट। ओके, या सिंपली जो ये पॉइंट है, ओके, जो जीरो सेविंग का पॉइंट है, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, दोनों तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्टेप 2 में आप ये कर दीजिए, दिस स्टेप 2, व्हाट, ड्रॉ अ perpendicular line from point P। इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन को आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ओके, ये दिस, इसको ऊपर की तरफ भी हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस। ये एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक ऊपर और नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब जैसे हमने इसमें एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ पर भी आपको एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको, हमारा जो पर्पज इसमें कंजम्पशन कर्व को दिखाने का नहीं है, हमारा पर्पज है इस पोर्शन में कंजम्पशन कर्व। अदरवाइज आप यहाँ पे भी दिखा सकते थे, बट सेम वे हम यही चीज़ यहाँ पर भी कर लेते हैं। दिस 45 डिग्री की लाइन यहाँ पर मैं उसमें भी आपको करके दिखा सकता हूँ, अभी दिखा दूंगा। y इक्वल टू ई, दिस इज 45 डिग्री लाइन। ओके, तो जो आपने एक 45 डिग्री की लाइन इस पार्ट में किया था, वही काम आपने ड्रा 45 डिग्री लाइन यहाँ पे किया। देन ड्रा परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट P वेयर सेविंग इज 0 एंड तीसरे स्टेप में आपको यही काम जो आपने किया है इसको दिखा दीजिए या लिख दीजिए। लोकेट अ पॉइंट Q, दिस पॉइंट Q वेयर दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट द व्हाट, इंटरसेक्ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइन। ओके, तो इस पूरे स्टेप को कैसे लिखेंगे? लोकेट पॉइंट Q, locate a point Q where perpendicular line, this perpendicular line intersect the income and expenditure line। ओके, जहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर लाइन को दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट पर एक पॉइंट लोकेट करना है, दैट इज डिनोटेड एज Q। ओके स्टूडेंट्स, ओके। देन अगला स्टेप क्या है? देन फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? सीयर, आपको एक ये पॉइंट मिल गया। देन मेजर द पोर्शन ऑफ OS, दिस माइनस C बार है, ये नेगेटिव एक्सेस में ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एंड इस इक्विवेलेंट टू OS मेजर इट इक्विवेलेंट टू इट ऑन पॉजिटिव एक्सेस ऑफ Y, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कंजम्पशन कर्व हमेशा पॉजिटिव एक्सेस ऑफ Y से शुरू होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? मेजर द लेंथ OS, ओके, which is माइनस C बार है। मेजर द लेंथ OS
and equal to OS, draw equal to OS, draw it on positive axis of y and find a point C. ओके, अब इसको कैसे पता करेंगे? इक्विवेलेंट टू OS, एक पॉइंट O से दिस एक इक्विवेलेंट टू OS आपको एक मेज़र करना है लेंथ, और जितनी लेंथ आप मेज़र करेंगे उस पॉइंट पर पॉइंट एक लोकेट करेंगे C. ओके, दिस पॉइंट C denote as where OC is equal to OS. देखो, this OS length is always equal to OC and which denote this OC, that is C bar, autonomous consumption. ओके, तो चौथे स्टेप पे आपको ये काम करना है कि जो OS है इक्विवेलेंट टू OS, मेजर द डिस्टेंस OC, ओके, on the positive axis of y, right students? And then last step 5 में क्या करना है? You have the 2 points C and Q, okay, meet these points and extend it to forward. अब इसको आगे की ओर बढ़ा देना है, this in this way, this is your consumption curve. तो 5वें स्टेप में meet the point C and Q through straight line. ओके, ये पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देना है. इसको थोड़ा सा और देखिए. मीट द point C, this point C and this point Q, okay, through straight line and extended up to C. इस आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए और इस पॉइंट को आपने मिलाया और इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू C, देन we will get what? We will get this CC line. We will get then right here. मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ. Okay. See, then we get CC consumption curve or line, right students? तो ये these are the 2 important major concepts, okay, and how we can derive both the curve, consumption and saving curve, and how we can write the major steps of drawing these consumption and saving curve. इसको क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर देख रहे हैं, सी हियर, ये दीज आर द 2 डायग्राम्स. इसकी आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करनी है कि हियर यू ऑलरेडी नो द कंजम्पशन कर्व, विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व हाउ यू कैन फाइंड द सेविंग कर्व. एट द सेम वे you already know about the saving curve and how you can find the consumption curve. और इसके these are the 5 major steps to find these consumption and saving curve, right students? So this is the overall derivation of both the curve, consumption curve and saving curve. I hope these 2 concepts are easily understand. If
having any doubt, then please ask. Okay, students, but these two concepts are very, very important. This concepts having two parts, एक ड्राइंग पार्ट है एंड द दूसरा पार्ट है एक्सप्लेनेशन पार्ट, that on the basis of that how you can draw and derive the curve, saving curve or consumption curve, then write down the major steps of the derivation of these curves. Okay, तो एक तो स्टेप्स सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस डायग्रामेटिकली इसको किस किस प्रोसेस के थ्रू ड्रॉ करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो thank you. I hope you understand this concept very well. Okay, thank you.